Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we have completed from the book, we have completed chapter 9, that is soil, and now we'll discuss its notes which I'll be providing you on the WhatsApp group. So we'll discuss what we have learned in the whole chapter. So we have discussed about what is soil. Okay, it is the uppermost layer of the earth, the uppermost layer which where life thrive, and it is the base of agriculture. Obviously soil is the base of agriculture. There is some, due to physical and chemical features of rocks, it comprises of minerals and grooves, microbes, invents, decays, organic matter, nutrients, water and air. So we know due to physical and chemical weathering of rocks, there are some specific characteristics of a soil. Okay, it has organic matter, insects, microbes, XYZ, everything inside it. And these are the characteristics, or these are the things which modify or gives the characteristics to a soil. There are different types of soil, differing based on the geographical composition, that is climate, rainfall, the area receives, and is generally removed and formed by activities natural and or human. There are different types of soil. Okay, so we have, on the basis of geographical composition, what are the conditions around it, what is the condition while weathering is happening. Okay, there are levels of soil, there are some specific levels of soil, so we'll discuss it. Humus, what is humus? Humus is the organic component present at the top layer, or which form by the decaying of the chemical material and is present in the upper layer. Okay, it is very helpful for the agriculture, for the for the nourishment of the soil. Okay, for the fertility of the soil. And then we have discussed a topic which is weathering. Weathering is the breaking down and dissolving of rocks and minerals on earth's surface. Water, ice, acid, salt, plants, animals and changes in the temperature are also agents of weathering. What is weathering? Weathering is the breaking of rocks into soils, and it makes the surface of the earth, first surface of the earth. It comprises the factors which affects weathering is water, ice, acid, salt, plants, animals and changes in the temperature all around it. Okay, so then we have discussed about soil profiling. What is soil profiling? Soil profiling is the composition of different layers of soil in a vertical section. What is vertical? This is vertical. So these are the sections which we have discussed in soil profiling. First is horizons. The layers in the soil is defined as horizon, and it has it has three horizons, 4 layers and 3 horizons. First is A horizon, B horizon, C horizon and last is bedrock. First horizon is the top and the soft porous layer which absorbs and hold more water. Second is the layer which is more compact, harder, and the third is the layer which is filled with small rocks, and last is the bedrock, which is the fourth layer and the hardest layer. Okay, then we have discussed about soil erosion. In the last session also we have discussed about soil erosion. It is the process of removal of land by water, wind and ice is known as erosion. The removal of the first layer or the soil, okay, first layer of the land or the main soil layer is when it is removed because of air, water and ice, it is known as erosion. The process of removal of soil by winds and water is the absence of plant is called as soil erosion. तो जो प्रोसेस होता है सॉइल का रिमूवल विंड और वाटर की वजह से, उससे बोलते हैं सॉइल इरोजन. तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज इरोजन एंड व्हाट इज सॉइल इरोजन. ओके, अब मेथड क्या क्या रहेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए. डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहे हैं एक्चुअली में सॉइल इरोजन, तो डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड. डिफॉरेस्टेशन रोक दिया जाए, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए. ठीक है, अब हमने ये डिस्कस कर लिया सॉइल प्रोफाइलिंग, बट व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल. First is sandy soil. The sandy soil is the basis of the proportion of particles of various sizes. Sand tends to have large particles and the particles are solid and have no pockets where water and nutrition can be hold to it. क्या होता है soil? Sandy soil वो होती है जिसमें various sizes होते हैं. ठीक है, थोड़े बड़े होंगे, थोड़े छोटे होंगे, दोनों साइज थोड़े रहेंगे, लेकिन लार्ज साइज ज़्यादा रहता है. ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होता है जहाँ पे वाटर होल्ड हो सके, वाटर या न्यूट्रिएंट्स होल्ड हो सके. Because of this, water and nutrients tends to run out, and because sandy soil lack water and nutrients, many plants have a difficult time surviving this kind of soil. अब क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको मेजरली क्या चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अब सॉइल जब पानी और न्यूट्रिएंट्स होल्ड ही नहीं कर रहा है उसके अंदर, तो प्लांट को तो ग्रो होने में दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो इसमें प्लांट इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं. सेकेंड इज क्ले सॉइल. अपने आप पता चल रहा है वर्ड से कि क्ले टाइप का होगा, चिपचिपा होगा. तो चिपचिपा क्यों होगा, अगर उसके अंदर पानी होगा तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं. क्ले सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में पानी वो करता है, रिटेन करता है अपने अंदर, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्ले swell and shrink as they wet and dry, effectively cultivating themselves. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होल्ड हो पाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होल्ड हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो करता है. नाउ विल टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लूमी सॉइल. इट हैज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड फाइन सॉइल. इसमें दोनों टाइप के पार्टिकल्स होते हैं इक्वल. इट इज़ कॉल्ड लूमी सॉइल. ठीक है. लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड विच इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है, जैसे जो क्ले सॉइल हो गया उसमें ज़्यादा पानी रहेगा, सैंडी सॉइल में कम पानी रहेगा, लेकिन जो लूमी सॉइल है उसमें एडिक्वेट अमाउंट में पानी रहेगा एंड न्यूट्रिएंट्स रहेंगे. तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल है ग्रो करने के लिए प्लांट्स को. नाउ विल टॉक अबाउट पर्कुलेशन रेट. ओके, वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर रीडिंग ऑल्सो. पर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड व्हाइल पास थ्रू अ फिल्टर. पर्कुलेशन क्या होता है, लिक्विड का फिल्टर होना. ठीक है, फिल्टर के थ्रू अगर हम लिक्विड को फिल्टर होना उसे बोलते हैं पर्कुलेशन. रेनफॉल seeps underground through percolation where water travels downwards through the tiny spaces between the rocks and soil particles. क्या होता है जब बारिश होती है तो क्या होता है, पर्कुलेशन हम उसमें देख सकते हैं. अंडरग्राउंड में पर्कुलेशन होता है कि जो सॉइल है या जो टाइनी पार्टिकल्स है उसके थ्रू पानी ट्रेवल हो रहा है. ठीक है. द वाटर इवेंचुअली सैचुरेट्स द अंडरलाइंग रॉक much like water fills the tiny holes of the sponge. This helps to replenish aquifer under the ground. अब ये चीज़ होती है कि ये पर्कुलेशन हम डिसाइड कर पाते हैं कैसे. हमने एक एक्टिविटी भी करी थी जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट, कितना पानी नीचे तक जा पाता है, कितना जल्दी जा पाता है. ठीक है. द रेट ऑफ पर्कुलेशन, द पर्कुलेशन रेट ऑफ सॉइल. अब पर्कुलेशन रेट हम कैसे निकालेंगे, कितना एब्जॉर्ब कर पाती है सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब कर पा रही है, वही होगा पर्कुलेशन रेट. द रेट ऑफ पर्कुलेशन इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीमीटर्स टू द पर्कुलेशन टाइम इन वाटर. अब हम ये चीज़ देखेंगे कि कितना मिलीमीटर में, मतलब कितना पानी, मिलीमीटर पानी कितना जल्दी जा पाता है. तो अमाउंट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द पर्कुलेशन टाइम, कितनी देर में वो नीचे पहुंच पा रहा है, कितना अमाउंट का पानी है. तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा पर्कुलेशन रेट. नाउ विल टॉक अबाउट मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन. मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन. मॉइस्चर इन सॉइल. मॉइस्चर इन द सॉइल इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. एक्चुअली में मॉइस्चर क्या होता है, सॉइल के अंदर जितना भी पानी है दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर. मॉइस्चर इन द सॉइल कैन बी रिमूव बाय सेटिंग अप द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. मॉइस्चर कैसे सॉइल में से निकाल सकते हैं हम कि कितना होता है, वो हम एक एग्जाम्पल में करेंगे. टेक सॉइल सैंपल एंड पुट इट इन बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट. नाउ ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स इन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. द वे वी कैन रिमूव मॉइस्चर इन द सॉइल. अब हम लोग मॉइस्चर सॉइल में से कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग एक्टिविटी करके देखेंगे. आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसके अंदर डालना है सॉइल सैंपल, उसको करना है हीट. ठीक है. उसके जब आप हीट करेंगे तो उसके जो टेस्ट ट्यूब है या जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके आसपास आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेंगे उसके माउथ पे. तो वही होता है वो पानी जो सॉइल के अंदर है और वही मॉइस्चर कहलाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. अब वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सॉइल या जो वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सॉइल की, वो कितनी होती है, पोर्ड इनटू द सॉइल, जितना भी वो एब्जॉर्ब कर पाता है. ठीक है. सॉइल के अंदर वही उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है. परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. अब कैसे निकालते हैं परसेंटेज,
इनिशियल वेट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। पहले कितना, बाद में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है अपॉन वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। तो यही होता है उसका परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। अब यू और वी को इसने डिफाइन कर रखा है, जो हमने डिस्कस किया था, तो ये आप याद कर लिया और बुक में से एक बार रीड कर ले इस टॉपिक को, क्योंकि ये जहाँ पे भी वो आता है फॉर्मूलेज आएंगे थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम आ जाते हैं क्रॉप पे। हमने लास्ट सेशन पे ही क्रॉप की बात करी थी। क्रॉप इज इट्स रिलेटिव टाइप ऑफ सॉइल। कैसी क्रॉप कैसे सॉइल में ग्रो हो पाती है, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट फैक्टर्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट जो रहते हैं सॉइल में, उसी वजह से अलग अलग टाइप की जो क्रॉप है वो ग्रो हो पाती है। ठीक है। क्ले सॉइल एंड लूमी सॉइल गुड फॉर द ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। क्ले सॉइल जो थी जिसमें चिपचिपा, सबसे ज़्यादा चिपचिपा था, सबसे फाइन पार्टिकल्स थे, और लूमी सॉइल जिसमें इक्वल पार्टिकल्स थे दोनों साइजेस के, वो सबसे अच्छी ग्रो करती है। उसके अंदर क्या सबसे अच्छा ग्रो करता है? व्हीट एंड ग्राम। क्ले सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल्स विद अ ग्रेट कैपेसिटी, गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। क्ले सॉइल जो होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उसमें क्या ग्रो कर सकता है? पैडी और व्हीट। ठीक है। लूमी सॉइल which with higher draining capacity can be hold plenty of water, good for growing lentils and other pulses and cotton। अब लूमी सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ग्रो कर पाते हैं? उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसूर ग्रो हो पाते हैं, पल्सेस ग्रो हो पाते हैं। ठीक है। हाइड्रोफोनिक प्लांट्स, अब ये चीज़ हमने उस चैप्टर में डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन ये अब हम पढ़ेंगे। Plant which do not need soil to grow, instead their plant need water to grow. These type of plants are known as hydroponic plants। ऐसे plants, हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कैसे plants किस तरीके में उगते हैं। इन कुछ ऐसे plants होते हैं जिसको soil चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक प्लांट। ओके, सो यहाँ हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको आज ही सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो बैक एक्सरसाइज के वो सेंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।